Assalamu alaikum students. I'm your course instructor, Miss Anika Saidzia from University of Education, Bank Road Campus, Lahore, and I have been associated with this teaching profession for last 5 years. And your subject is advanced painting, and the course code is FINE 4134, and your course outline has been already shared with you in the previous lectures. So let's get started with the today's lecture. Today we are going to talk about the composition, that what is composition in your painting and how it supports your painting. In the visual arts, composition is the placement or arrangement of the visual elements such as figures, trees, and so on in a work of art as distinct from the subject or the style with which it is depicted. So basically, it helps you to arrange or to organize your different visual elements. It could be a figure, it could be a tree, it could be a table, it could be any object from nature or from your surrounding. So it helps you to arrange all the visual elements in a proper way in your canvas or in your painting. It can also be thought of as the organization of the elements of art according to the principles of art. So यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एलिमेंट्स तो है, बट प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट भी जो हैं वो इसमें आ जाते हैं. हम प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट को भी फॉलो करते हैं. द टर्म कॉम्पोजिशन मीन्स पुटिंग टुगेदर and can apply to any work of art from music to writing to photography that is arranged using conscious thought. Obviously composition है, ये एक process है, ठीक है. It's a process of arranging different visual elements. This process can be done in any medium. अब म्यूज़िक में भी आपकी composition है होनी चाहिए, राइटिंग में भी composition है, फोटोग्राफी में भी है. सो हर चीज़ में आपको एक कॉम्पोजिशन चाहिए होती है. इवन फूड के लिए भी, अगर आप कुकिंग कर रहे हैं उसमें भी आपको एक कॉम्पोजिशन चाहिए. अगर आपकी कॉम्पोजिशन डिस्टर्ब हो जाती है, इफ़ इट विल गेट डिस्टर्ब, देन योर आर्ट वर्क will not become more fascinating or interesting. It will look unbalanced. Rules of composition. So there are 5 main rules for any composition which you have to be follow uh, while making any drawing or while painting on the canvas. The first one is rule of thirds. The second is rule of odds. The third is leading lines. And the fourth is groupings. And the fifth is L-shaped structure and S-shaped structure. So first we will discuss about the rule of thirds. It applies to the various forms of visual arts like sculpture, painting, installation. These are the different mediums of art. आप उसको sculpture में भी apply कर सकते हैं, painting में भी, और installation में भी आप उसको कर सकते हैं. It's up to you. This rule is generally about two things. These lines create intersection points that are good spots to place focal points in your image. So जो rule of thirds हैं वो लाइंस का एक ऐसा इंटरसेक्शन बनाती हैं और एक ऐसा इंटरसेक्टिंग पॉइंट बना देती हैं आपके लिए, जो कि आपको हेल्प करता है प्लेस करने के लिए फोकल पॉइंट आपका इमेज का. हर इमेज का कोई ना कोई फोकल पॉइंट होता है. जो मेन उसका सब्जेक्ट है, जो मेन उसका सपोज आप फिगर्स बना रहे हैं या आप स्टिल लाइफ बना रहे हैं, अगर आप फिगर भी बना रहे हैं तो उसमें जो फेस होगा फिगर का,
दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो आपका फोकल पॉइंट होगा। अगर वहाँ 2 फिगर्स हैं या 3 फिगर्स हैं, इट डिपेंड्स, तो उनके जो फेसेस होंगे वो आपके फोकल पॉइंट्स हो जाएंगे। या इन केस अगर आप कोई स्टिल लाइफ कर रहे हैं तो उसमें जो आपके मेन ऑब्जेक्ट्स होंगे अकॉर्डिंग टू द कलर, अकॉर्डिंग टू द साइज, जो काफ़ी आई कैची होंगे, तो वो आपके फोकल पॉइंट होंगे। तो ये रूल ऑफ थर्ड क्या करता है, इट हेल्प्स यू टू मेक एन इंटरसेक्टिंग पॉइंट जहाँ पे आप उसको इजीली प्लेस कर सकते हैं, अपना कंपोज कर सकते हैं आप अपने फोकल पॉइंट्स को इमेज के। ओके, रूल ऑफ थर्ड्स ऑल्सो सजेस्ट that any horizon in your image line up with one of the horizontal lines on the grid। एक तो आपको ये हेल्प करता है फर्स्ट पॉइंट रूल ऑफ थर्ड्स का किसी भी कॉम्पोजिशन में, कि आप अपना जो फोकल पॉइंट है उसको आप वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं इजीली ऑन दोज इंटरसेक्शन पॉइंट्स जो कि लाइंस बनाती हैं। सेकंड थिंग इसमें है, रूल ऑफ थर्ड्स जो हैं वो आपको हेल्प करते हैं कि आपका जो हॉराइजन लाइन है वो लाइन अप हो जाए आपके हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ, जो आपकी ग्रिड की हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी। अभी आगे जाके आप स्लाइड्स देखेंगे, उसमें है कि आप अपनी कॉम्पोजिशन को, यू विल डिवाइड योर कॉम्पोजिशन इन 3 वर्टिकल प्लेन्स एंड इन 3 हॉरिजॉन्टल प्लेन्स। देन जब आप प्लेस करेंगे वर्टिकल लाइंस एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस, ऑब्वियसली इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स बनेंगे, और वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स जो होंगे वो आपको हेल्प करते हैं, आप वहाँ पे अपना फोकल पॉइंट जो है वो प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, और सेकंड चीज़ जो है, उन्हीं हॉरिजॉन्टल लाइंस में से कोई भी आप लाइन ले सकते हैं, स्पेशली जो नीचे वाली बॉटम लाइन होती है, यू कैन टेक दैट लाइन एंड यू कैन प्लेस and you can place your horizon line on that horizontal line which is coming in the bottom side। horizon line क्या है? horizon line is the line where sky and earth meets together। ठीक है, it's just an illusion of our eye that जहाँ पे ज़मीन जो है ख़त्म होती हुई नज़र आती है और स्काई स्टार्ट होता हुआ नज़र आता है, और ऐसा लगता है कि जो दोनों हैं चीज़ें वो आपस में मीट कर रही हैं, स्काई और अर्थ, बट इट्स जस्ट एन इल्यूजन ऑफ आवर आई। आपको वो होराइजन लाइन जो है वो रोड के एंड पे भी नज़र आ सकती है, इफ़ यू आर स्टैंडिंग एट सम पॉइंट, तो रोड का जो एंड होगा पर्सपेक्टिव में, आपको वहाँ पे सारी जो लाइंस हैं आपकी वो एक जगह पे ख़त्म होती हुई नज़र आएंगी और वहीं पे स्काई स्टार्ट होता हुआ नज़र आता है। सो दैट इज़ योर होराइजन लाइन। एज यू कैन सी इन दिस इमेज, रूल ऑफ थर्ड्स, you can see if you divide the scene into grid like this, it will divide the scene into 3 major vertical areas and 3 major horizontal areas। So you can easily see that on the right side image has been divided into 3 vertical panels and 3 horizontal panels, and as you can see जो object है उसको वहाँ पे प्लेस किया गया है एट द इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, जो कि आपके फोकल पॉइंट है। ऑब्जेक्ट आपका फोकल पॉइंट है, मेन है फोकस आपका ऑब्जेक्ट के ऊपर, सो दैट्स वाई वी हैव प्लेस्ड ऑब्जेक्ट ऑन दैट स्पेसिफिक इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। एंड ऑल्सो आप देखें अगर जो नीचे उसका बेस है वो भी नीचे बॉटम की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके पास ही आ रहा है। रूल ऑफ थर्ड्स, scene is divided into 3 major vertical areas। as you can see red कलर का जो एरिया है वो आपके वर्टिकल पैनल को शो कर रहा है। ये एक पैनल है इस तरह के साइड पे, लेफ्ट साइड पे यू कैन सी 2 more panels, vertical panels। in the same way in this image you can see scene is divided into 3 major horizontal areas and the red area is indicating the bottom horizontal area। ऊपर साइड पे अगर आप देखें एट द टॉप देयर आर मोर 2 horizontal panels or areas। These grid lines creating intersection points that are good spots to place focal points in an image। आप यहाँ पे देख सकते हैं इजीली जो रेड सर्कल्स हैं, दे आर इंडिकेटिंग द इंटरसेक्शन पॉइंट्स, एंड
we have placed our object, which was the main focus, which was the main focal point. We have placed it on those intersecting areas. अगर हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स होते या 3 ऑब्जेक्ट्स होते तो हम उसको कुछ अरेंजमेंट इस तरह से करते कि जो बाकी इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं वहाँ पे भी हम उनको प्लेस करते. बट नाउ वी आर ओनली हैविंग वन ऑब्जेक्ट, दैट्स वाई वी हैव placed it on these 2 circles on the right side जहाँ आपके 2 intersecting points हैं. Rule of thirds. Here in the painting, focal points, which are the area of interest, for example faces of figures, falls at the intersection points of the grid between the intersection points of the grid. So इस पेंटिंग में, इन दिस पेंटिंग, जो फोकल पॉइंट आपका है, जो मेन एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, दीज आर द फेसेस ऑफ दोज 2 फिगर्स, एंड यू कैन सी दैट artist has placed the faces of the figures exactly on the intersecting point, exactly on the intersecting point of the grid. ठीक है, आप exactly उस intersecting point पे भी अपना focal area, focal point रख सकते हैं और उसके close भी रख सकते हैं. जैसे कि second figure है तो आप देख सकते हैं कि उस second figure जो है उसका exactly intersecting point पे नहीं है, but it is nearer to that intersecting point. Okay, now we will talk about the second point, the second important point in which rule of thirds help us, which is horizon in your image lined up with one of the horizontal lines on the grid. This helps you to avoid placing your horizon line in the middle of the scene. As you can see in the image, अगर आप right side पे देखें, horizon line आपकी है बिल्कुल जहाँ पे red line आपको draw हुई हुई है. तो आपका वहाँ पे मे भी आपका टेबल होता या आपका सरफेस है, लेकिन ये वो पॉइंट है, ये वो होराइजन लाइन है जहाँ पे आप कह सकते हैं कि यहाँ पे फ्लोर है और वहीं पे आपका आगे से वॉल स्टार्ट हो रही है. ठीक है, तो हमें वो शेडिंग से पता चलता है, और शेड से हमें इंडिकेशन आ रही है दैट देयर इज़ द होराइजन ऑफ द एरिया. और अगर आप देखें तो वही होराइजन भी है और वही जो है आपका हॉरिजॉन्टल पैनल भी है, प्लेन भी है. आपके 3 हॉरिजॉन्टल पैनल्स हैं जिसके अंदर 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं. तो आपकी जो सेकंड बॉटम वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एग्जैक्ट आपके हॉराइजन लाइन पे आ जाती है. दिस इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. और ये जो चीज़ है ये आपको हेल्प करती है कि आपका जो होराइजन एरिया है, होराइजन लाइन है, वो आपके ग्रिड्स के कहीं बीच में ना आ जाए. सपोज आपकी ये जो रेड लाइन है और वो जो टॉप वाली येलो लाइन है उसके सेंटर में ना आ जाए. दैट्स वाई. सो रूल ऑफ थर्ड्स. Note how the horizon falls close to the bottom grid line and how the dark areas are in the left third, the overexposed in the right third. So आप पेंटिंग में देख सकते हैं, किसी भी पेंटिंग को अगर आपने ऑर्गेनाइज करना है, कंपोज करना है, सो व्हाट यू कैन डू, आप डार्कर साइड जहाँ पे शेडोज़ हैं, जहाँ आपकी डार्कर टोन्स जाएंगी, मिडिल टोन्स जाएंगी, यू कैन put that side or put that area on the left side of the grid. and जो आपका बहुत ज़्यादा लाइटर साइड है, जहाँ पे एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है लाइट का, हाईलाइट्स बहुत ज़्यादा है, उसको आप राइट साइड पे अपने ग्रिड के ऊपर लेके आ सकते हैं, ऑन द वेरी राइट साइड पैनल. ठीक है, हमारे पास इस वक्त 3 वर्टिकल पैनल्स हैं. वी आर हैविंग 3 वर्टिकल पैनल्स, एंड ऑन द राइट साइड, on the first vertical panel on the right side, we are having the most lightest area of the image, and on the left side we are having the most dark area of the image. And how the dark areas, and most important thing, जो हमारी horizon line है जहाँ पे आप देख रहे हैं कि रोड एंड हो रही है और स्काई वहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, मीट कर रहा है, इट इज़ जस्ट एन इल्यूजन ऑफ आवर आई. एक सिर्फ आंखों का धोखा है कि वहाँ पे एक होराइजन लाइन है जहाँ पे आसमान शुरू हो रहा है और रोड ख़त्म हो रही है. जैसे जैसे हम ग्रेजुअली आगे को मूव करते जाएंगे तो वो लाइन आपको और दूर दिखेगी. बट इन योर इमेज यू कैन सी आपकी जो रेड लाइन है, बॉटम हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, उसके बिल्कुल करीब ही आपका होराइजन लाइन भी आ गई है. दैट्स व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट.
कि होराइजन लाइन शुड ऑलवेज कम एट द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ द ग्रिड। अगर आपका होराइजन सपोज आपकी जो रोड है ये और सेंटर में चली जाती ग्रिड के, तो वो आपका गलत हो जाता होराइजन, आपकी कॉम्पोजिशन डिस्टर्ब हो जानी थी। इट शुड ऑलवेज कम टू द हॉरिजॉन्टल लाइन which is lower, which is at the bottom side. Horizon line of the scene falls little lower to the bottom grid line. Painting by Turner. As you know, Turner was a very famous artist, and he was famous to paint different atmospheric paintings. He used to paint rain, mist, steam, fire. So in this image horizon line is barely visible. बहुत मुश्किल से हमें horizon line जो है वो obviously नज़र आ रही है, कोई clear नहीं है, इतनी obvious नहीं है. So but we can say कि आपका जो horizon है painting का horizon line जो है जहाँ पे sea ख़त्म हो रहा है और जहाँ पे sky start हो रहा है, exact point जहाँ पे हमें sunset नज़र आ रहा है, sunset होता हुआ, उस पॉइंट को अगर हम देखें तो वो एग्जैक्टली आपके ग्रिड के हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर आ रहा है. ठीक है, इट मीन्स कि ये आपकी कॉम्पोजिशन जो है वो परफेक्ट है. अगर ये हॉराइजन लाइन पेंटिंग की ऊपर चली जाती वाइट लाइन से, आपका वो जो सनसेट है वो ऊपर चला जाता वाइट लाइन से, देन इट विल बिकम अनबैलेंस्ड कॉम्पोजिशन. You can also apply the same rule on any taller vertical object in the scene. ये रूल ऑफ थर्ड्स की हम बात कर रहे हैं, अभी तक हम रूल ऑफ थर्ड्स को ही डिस्कस कर रहे हैं, इसके डिफरेंट पॉइंट्स को. यू कैन ऑल्सो अप्लाई ऑन एनी. ठीक है, आपके जो ऑब्जेक्ट की आपने सपोज स्टिल लाइफ ऑर्गेनाइज की है, स्टिल लाइफ अरेंज की है, तो उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा वर्टिकल ऑब्जेक्ट है, जो सबसे ज़्यादा टॉलर आपका ऑब्जेक्ट है, उसको आपने क्या करना है, you will place that vertical, most vertical or taller object of the scene on the exact vertical line of your image. You just place that vertical object on that one of the vertical grid lines. So आप उस vertical object को आपने place कर देना है on the vertical grid line. As you can see, the red line, the vertical red line is exactly on that vertical object, जो आपका taller object है उसके exactly ऊपर आ रही है. तो ये कोई figure भी हो सकती थी, it could be any still life object, it could be any element from your nature. So यहाँ simple objects के साथ बात की हुई है, simple forms के साथ बात की हुई है. It helps to shift the balance of the composition to one side, so the objects which are visually heavier come in 1/3 of the image and the lighter in the other 2/3 of the image. So as you can see in this image, आपका जो सबसे ज़्यादा वो टॉलर ऑब्जेक्ट है, जो हैवी भी लग रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर ऑब्जेक्ट्स, तो वो आपका राइट साइड पे आ गया, ऑन द राइट साइड. अगर आप देखें आपका जो है ट्रायंगल जो है और आपका जो टॉलर ऑब्जेक्ट है वो आपके 1/3 पे आ गए हैं. ठीक है, थर्ड मीन्स कि आपके जो 3 पोर्शंस हुए हुए हैं उसमें से वन साइड जो आपकी राइट साइड है इट विल बी कॉल्ड 1/3. उसके अंदर आपके हैवियर ऑब्जेक्ट्स आ गए हैं और जो आपके विजुअली जो हैवियर है, ठीक है, आपको देखने में हैवी लग रहे हैं, और जो आपके लाइटर ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपके 2/3 में आ जाएंगे. यानी कि ऑन द लेफ्ट साइड, ऑन द लेफ्ट वर्टिकल पैनल्स, जो आपके 2 वर्टिकल पैनल्स हैं, मीन्स कि आपके जो 6 बॉक्सेस बन रहे हैं उसके अंदर आपके लाइटर ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे, जिसमें आपको कोन नज़र आ रही है, ठीक है, रॉड्स आपको नज़र आ रही हैं प्लेस हुई हुई, तो वो आपके लाइटर ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपके इमेज के 2/3 एरिया जो है उसमें आ गए हैं. ठीक है, तो इससे क्या हुआ है, हमारी जो कॉम्पोजिशन है वो बैलेंस्ड हो गई है. हमारा हैवी ऑब्जेक्ट जो है वो एक साइड पे चला गया है कम स्पेस में, और जो हमारे लाइटर ऑब्जेक्ट्स हैं वो स्कैटर्ड हैं हमारे ज़्यादा स्पेस में. इसी तरह से अगर कोई फिगर होती है तो आप फिगर को भी राइट साइड पे कर सकते हैं. अगर छोटे मतलब वहाँ पे कोई इफ़ दे आर सम चिल्ड्रन, तो आप उनको लेफ़्ट साइड पे कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज ऑफ द बॉडी.
So this is a good use of negative space which helps the viewer's eye to move around the scene and towards the focal point of the scene. So this division uh, of 2/3 and 1/3 helps us, और वो हमें एक अच्छा हम नेगेटिव स्पेस का यूज़ कर लेते हैं. जैसे आप देख रहे हैं ऑन द लेफ्ट साइड देर इज़ लॉट ऑफ नेगेटिव स्पेस एज कम्पेयर टू द राइट साइड. तो वो एक बैलेंस हो गया है. लेफ्ट साइड पे अगर नेगेटिव स्पेस ज़्यादा है तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट्स भी ज़्यादा हैं. ऑन द राइट साइड अगर नेगेटिव स्पेस कम है तो वहाँ हैवियर ऑब्जेक्ट्स हैं ज़्यादा. ठीक है. सो इस तरह से हम उसको बैलेंस कर लेते हैं. और आपकी जो आई है, जो देखने वाला है, ऑन लुकर है, ही कैन ईजिली फोकस ऑन दैट फोकल पॉइंट. अगर आप यहाँ देखें तो फोकल पॉइंट भी एग्जैक्ट आपका जो रेड लाइन येलो लाइन के साथ इंटरसेक्ट कर रही है उसके ऊपर फोकल पॉइंट है. और आपके ऑब्जेक्ट्स वहीं पे मोस्टली आ रहे हैं. आपकी कोन जो है ऑब्जेक्ट वो भी वहीं पे है. आपका जो ये वर्टिकल है टॉलर ऑब्जेक्ट रेक्टेंगुलर से ये भी वहीं पे है. ओके. It suggests that an odd number of objects is more interesting to look at than an even number of objects. ठीक है. ऐसा सजेस्ट किया जाता है, ऐसा माना जाता है in any composition that जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, जो आपके एलिमेंट्स हैं, अगर आपके फिगर्स आप बना रहे हैं, स्टिल लाइफ बना रहे हैं, लैंडस्केप कर रहे हैं, तो इट ऑलवेज बी प्रेफर्ड टू चूज़ ऑड नंबर. हमेशा आप लेंगे 1, 3, 5, 7 ऑड नंबर्स को प्रेफर करेंगे. यू विल नॉट गो टूवर्ड्स द इवन नंबर्स विच आर 2, 4, 6, 8. उससे क्या होता है कि आपकी जो कॉम्पोजिशन है इवन नंबर्स की वजह से वो सिमेट्रिकल हो जाती है, बिल्कुल एक स्टैटिक सी हो जाती है. ठीक है. उसमें वेरिएशन नहीं रहती है, वो इतनी इंटरेस्टिंग नहीं साउंड करती है. इट्स अप टू यू दैट हाउ यू प्ले विद दिस आइडिया. वो आपके ऊपर है. इट्स अप टू यू that how you are going to do the placement of your objects, of your figures, of your landscape, trees, plants. But you have to choose the odd numbers instead of even numbers. Either you are doing some landscape painting, some figure drawing, some nature study. Always choose odd numbers for your artwork. So you are trying to avoid things looking more symmetrical. बाय डूइंग सो हम इस तरह से करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम सिमेट्री को अवॉइड कर रहे हैं, हम सिमेट्रिकल कॉम्पोजिशन को अवॉइड कर रहे हैं. वी आर गोइंग टूवर्ड्स मोर एसिमेट्रिकल कॉम्पोजिशन. देयर समहाउ always one thing or object left over which keeps your eyes moving across the as you can see in this composition. There are 3 objects and क्योंकि यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट्स, दैट्स वाई जो देखने वाला इंसान है, जो व्यूअर है आपका, जो पेंटिंग को व्यू कर रहा है, वो इजीली उसकी जो आई है वो मूव कर सकती है आपकी पेंटिंग के अंदर. ठीक है. अदरवाइज सपोज अगर यहाँ पे एक सपोज ये जो ऑरेंज है फ्रंट पे वो ना होता और जस्ट वो वॉज होता और साथ उसके पोमेग्रेनेट होता तो एक स्टैटिक कॉम्पोजिशन बन जानी थी और आपकी जो व्यूवर की आई है वो वहीं पे स्टक हो जानी थी ऑन दीज 2 ऑब्जेक्ट्स. लेकिन आपका जो फ्रंट पे एक ऑब्जेक्ट है जो कि आपका ऑरेंज है, उसकी वजह से वो हेल्प कर रहा है आपकी आई वॉज की तरफ ले जाने पे, और फिर वॉज से आपकी जो है वो दूसरे फ्रूट की तरफ, पोमेग्रेनेट की तरफ जा रही है. देन ड्रेपरी है जो उसको हेल्प कर रही है. तो एक तरह से ये टेक्निक्स होती हैं कि आप जो देखने वाला है पेंटिंग को, आप उसकी आई को किस तरह से मूव करवाते हैं इन योर पेंटिंग. सो this is an example of balancing 3 figures in a composition utilizing spatial proximity. Means के spatial closeness की बात हो रही है कि आप किस तरह से गैप रख के क्लोजनेस का या डिस्टेंस का आप बैलेंस कर सकते हैं किसी भी कॉम्पोजिशन को. सो आप ऑन द राइट साइड एज यू कैन सी ओनली 1 figure is coming in the red portion which is your right panel, vertical panel, 1/3 of your image. जैसे हमने पहले बात की थी प्रीवियसली
कि 1/3 जो है उसके अंदर आपका एक ऑब्जेक्ट आ गया या एक फिगर आ गई है, और जो बाकी दो हैं वो आपके 2/3 जो है आपका इमेज का उसमें आ गए हैं, ठीक है। बिकॉज उसमें से एक शॉर्ट हाइटेड भी फिगर है, तो उन दोनों को उन्होंने उस तरह से कंपोज कर लिया है। लीडिंग लाइन्स in still lives, especially leading lines are more subtle than they would be in other types of images. So किसी भी स्टिल लाइफ में जो लीडिंग लाइंस होती हैं वो काफ़ी सटल होती हैं, और एज़ कम्पेयर टू अदर इमेजेस, अगर आपके कोई और हैं, सपोज आप लैंडस्केप कर रहे हैं या आप फिगरेटिव पेंटिंग कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपकी लीडिंग लाइंस जो हैं वो इतनी ज़्यादा सटल नहीं होंगी। लेकिन आप स्टिल लाइफ में जो है वो आपको लीडिंग लाइंस जो है सटल मिलती हैं। अगर आप देखें, येलो लाइंस हैं, दीज आर योर लीडिंग लाइंस इंडिकेटिंग द लीडिंग लाइंस। अब हर ऑब्जेक्ट जो है इस इमेज में इज़ इज़ मूविंग टूवर्ड्स द फोकल पॉइंट, जो कि आपका वो है स्फेयर है, ठीक है, जो आपका सर्कुलर शेप में एक आ रहा है फॉर्म, और जो रेक्टेंगल के ऊपर है, दिस इज़ योर फोकल पॉइंट, दिस इज़ योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। और जब आपकी ये लाइंस मूव कर रही हैं टूवर्ड्स दैट स्फेयर, तो वो उसको हेल्प कर रही हैं कि व्यूअर जो है वो इजीली उस तक पहुंच सके, उस फोकल एरिया की तरफ। और एज यू कैन सी, जो ट्रायंगल है उसकी भी डायरेक्शन उस तरफ को है, और जो वो रॉड्स हैं उनकी भी डायरेक्शन उस तरफ को है। तो इंटेंशनली उन ऑब्जेक्ट्स को इस तरह से प्लेस किया गया है कि उनकी जो आई है वो, उनकी जो डायरेक्शन है, लीडिंग जो लाइंस हैं वो उस तरफ लीड करें, उस तरफ आपकी जो आंख है उसको लेके जाएं। So, uh, leading lines, these are area of an image that help guide the viewer's eye to others area of an image. Like I told you before, that these lines, these leading lines help you to move your eye towards the other area of the image. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, on the left side, the bridge and the lines of the bridge are leading our eye towards the houses and towards the sky, towards the right side basically. Diagonal line. A strong diagonal is also a form of a leading line, as you can see in the work of Vincent van Gogh. On right side, the diagonal is represented through the person on the painting. So with the help of his pose or posture, diagonal line has been achieved. A diagonal line changes a basic composition into one that is more dynamical. Obviously, जहाँ पे vertical lines हैं या जहाँ पे horizontal lines हैं, वो composition जो है it will be more static, especially जहाँ पे horizontal lines होती हैं. Suppose अगर आप लेटे हुए हैं, reclining position में हैं, तो आपकी movement कम होती है, और आप बहुत स्टैटिक होते हैं, दैट्स वाई आपकी कॉम्पोजिशन भी स्टैटिक होगी अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन में चीज़ों को प्लेस करते हैं। और अगर आप देखें जो ट्रीज़ हैं वो भी वर्टिकल में होते हैं, तो हमें वो एक एनर्जी की फीलिंग आती है। इसी तरह से ह्यूमन बीइंग भी जो है, अगर आप मूव कर रहे हैं या आप इफ़ यू आर स्टैंडिंग, तो आप एक लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि इंसान जब मर जाता है, डेड हो जाता है, तो वो रिक्लाइनिंग पोजीशन में ही होता है। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो बहुत कामनेस को और सूदनेस को और रिप्रेजेंट करती है। सपोज़ आप सी वाटर की एग्जांपल ले लें, जब उसके अंदर स्टॉर्म नहीं होता, वेव्स नहीं उठती, तो वो काफ़ी काम होता है, और वो बहुत हॉरिजॉन्टल जो है वो लाइन में होता है। लेकिन जैसे उसके अंदर स्टॉर्म आता है या वेव्स उठती हैं, तो एकदम से हमें लाइफ और एनर्जी जो है वो फील होती है, और जो वेव्स हैं, जो कॉम्पोजिशन है, ऑटोमेटिकली वर्टिकल आ जाती है, वर्टिकल हो जाती है, ठीक है। सो अगर ह्यूमन बींग्स भी मूवमेंट में होते हैं, तो अगर आप गौर करें तो आपकी जो एनाटमी है, जो आपकी बोन्स हैं, वो भी डायगनली मूव, डायगनल पोजीशन में होती हैं उस टाइम पे। सो दैट्स वाई जब डायगनल लाइन आ जाती है तो मूवमेंट आ जाती है, वो आपका इमेज है
वो आपकी स्टिल लाइफ है या आपकी वो है लैंडस्केप है, तो उसके अंदर एक स्टैटिकनेस जो है वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, स्टैटिक फीलिंग नहीं आती है. द स्ट्रॉन्ग डायगनल बिकेम पॉपुलर ड्यूरिंग द बरोक आर्ट. सो बरोक मूवमेंट थी पूरी, रेनेसांस के बाद हम देखते हैं बरोक आर्ट. तो बरोक आर्ट में ये डायगनल लाइन का जो है वो बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट ने जो है अपनी कॉम्पोजिशंस में यूज़ की है. स्पेशली जो हम क्राइस्ट की देखते हैं, जीसस क्राइस्ट को हैंग किया हुआ है, तो उसमें भी हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो डायगनल कॉम्पोजिशंस मिलती हैं उसके अंदर. ग्रुपिंग्स. ग्रुपिंग्स जो है वो दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट रूल ऑफ मेकिंग योर कॉम्पोजिशन स्ट्रॉन्ग. The way you group objects in a scene can help the viewer understand their relationship to each other. इस चीज़ पे ये डिपेंड करता है, चीज़ों का रिलेशनशिप, आपके ऑब्जेक्ट्स का, आपके स्टिल लाइफ का, आपके फिगर्स का, आपके ट्रीज़ हैं अगर तो उनका, that how you have placed them and how you have made their groupings. The way you group things can either cause tension or create harmony within a scene. It depends. अगर आपने ग्रुपिंग उसकी अच्छी की है अपने ऑब्जेक्ट्स की, स्टिल लाइफ की, तो वो एक हार्मनी क्रिएट करेगा इमेज के अंदर. अदरवाइज अगर आप उसको अच्छे से ग्रुपिंग नहीं करते हैं, बैलेंस नहीं करते, प्लानिंग के साथ नहीं ग्रुपिंग करते, तो देन इट विल क्रिएट टेंशन. देन इट विल क्रिएट टेंशन इन योर इमेज. अदरवाइज आपका जो इमेज है वो आपको एसिमेट्रिकल और अनबैलेंस्ड लगेगा, और आपको एक हार्मनी नहीं फीलिंग आएगी, आपको एक रिदम फील नहीं होगा. ठीक है, आपको लगेगा कोई चीज़ उसमें डिस्टर्ब्ड है. सो एज यू कैन सी ऑन द राइट साइड, आपको डिफरेंट ग्रुपिंग्स बताई गई हैं दैट हाउ यू कैन डू अ गुड ग्रुपिंग. सो ग्रुपिंग में भी वही चीज़ें आ जाती हैं कि आप जो आपकी टॉलर ऑब्जेक्ट है या टॉलर जो आपका एलिमेंट है उसको आप राइट साइड पे प्लेस करें, और 1/3 में करें, और जो आपकी बाकी ऑब्जेक्ट्स हैं कम हाइट के हैं लेकिन उनकी आप क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हो ऑन द 2/3 ऑफ योर इमेज. दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ द ग्रुपिंग्स. These are the use of clustered shapes or items as opposed to scattered shapes to add weight to a composition. The painting Four Dancers by Edgar Degas uses this design element. Edgar Degas was a very famous painter who used to paint ballet dancers, especially on the theaters and on the backstage. एडगर डेगर्स ने बैले डांसर्स की लाइफ को बहुत फोकस किया है अपने काम के अंदर, उनकी डेली रूटीन, उनकी जो थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस होती थी. सो उसने अपने काम में इनके बैले डांसर्स को बहुत फोकस किया है. सो वहीं से इसकी की पेंटिंग है फोर डांसर्स. एज यू कैन सी ऑन द लेफ्ट साइड एक हमें क्लस्टर नज़र आ रहा है, एक हमें गुच्छा सा नज़र आ रहा है, अ बंच ऑफ फिगर्स. ठीक है, एक बंच है फिगर्स का, जिसकी वजह से आपकी जो कॉम्पोजिशन है उसका वेट ऐसे लग रहा है कि लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो गया है. बट एज यू कैन सी ऑन द राइट साइड जो है हमें वो क्लस्टर्स नज़र आ रहे हैं फोलिएज के, बुशेस के आप कह सकते हैं. ठीक है, बुशेस हैं बट दे आर इन परस्पेक्टिव. तो उसने इस तरह से साइजिंग के साथ भी जो है उस चीज़ को ग्रुपिंग की है कि आप जो हैं वो अपनी कॉम्पोजिशन को बैलेंस कर सकते हैं इस तरह से. ठीक है, हमें एक सिमेट्रिकल भी नहीं लग रहा, ऐसा नहीं लग रहा है कि एक सिमेट्री आ रही है कि 2 उधर हैं तो 2 इधर हैं, फिगर्स इस तरह से नहीं है. ठीक है, वो चीज़ें पर्सपेक्टिव में चली गई हैं, जो बुशेस हैं वो पर्सपेक्टिव में चली गई हैं, और जो फोरग्राउंड में फिगर्स हैं उनका एक बंच हमें नज़र आ रहा है. तो वो एक बैलेंस क्रिएट हो रहा है, क्योंकि जो चीज़ पर्सपेक्टिव में है वो ऑब्वियसली साइज़ में छोटी हो जाएगी, जो फोरग्राउंड में है तो ऑब्वियसली उसका साइज़ बड़ा होना चाहिए. दैट्स वाई उसने फिगर्स को इस तरह से इकट्ठा कर दिया है कि वो एक जो है वो दे आर मेकिंग अ बिग सर्कल, दे आर मेकिंग अ बिग शेप इन द फोरग्राउंड. L shape structure. This is another rule of a composition. L shape structure makes it easy to build a still life along a horizontal plane.
अगेन एल शेप भी आपको हेल्प करता है कि आप जो अपनी स्टिल लाइफ है उसको आप हॉरिजॉन्टल जो प्लेन है आपका उसके साथ साथ कंपोज कर सकते हैं. सो यू गेट द एल शेप्ड कॉम्पोजिशन. बाय डूइंग दिस, objects naturally line up along the intersections points of the grid. ऐसा करने से क्या होता है कि नेचुरली जो है आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो लाइन अप हो जाते हैं और अलॉन्ग साइड द इंटरसेक्शन पॉइंट्स, और जो आपके इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी वहाँ पे वो इजीली एडजस्ट हो जाते हैं. एज यू कैन सी इन दिस इमेज ऑन द राइट साइड. You start with the taller object on one of the vertical grid lines. अब आप ये देखें एल शेप की बात हो रही है, ये उस वर्टिकल प्लेन्स या हॉरिजॉन्टल प्लेन्स की बात नहीं हो रही है. हम ग्रुपिंग्स की बात नहीं कर रहे हैं. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द अदर पॉइंट्स ऑफ द compositions. वी आर जस्ट नाउ फोकसिंग ऑन द एल शेप स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे आप देखें येलो लाइन जो है इट इज़ मेकिंग एन एल शेप. इट इज़ मेकिंग एल शेप. तो एल की जो शेप है उसमें देखें कि आपका जो मोस्ट वर्टिकल और मोस्ट हाइटेड जो आपका ऑब्जेक्ट है वो वहाँ पे एग्जैक्ट उसके अलॉन्ग साइड आ गया है एल शेप के. और जो नीचे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन नज़र आ रही है वहाँ पे आपको कोन और वो जो स्फेयर है वो वहाँ पे प्लेसमेंट हो गई है उसकी. तो आपकी जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी देखें एल शेप में जो है कंपोज हो गए हैं. उससे क्या होता है कि एक तो आपकी जो स्टिल लाइफ है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ साथ आ गई है. सपोज उसकी जो बेस है, जो उसका होराइजन है, अगर यहाँ पे कोई लैंडस्केप होता सपोज या कोई सी स्केप होता तो उसका भी जो होराइजन लाइन है वो आपके इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ही आ जाना था जो आपका बॉटम में नज़र आ रहा है. एस शेप स्ट्रक्चर. The S shape curve mostly used in landscape scenes. ज़्यादातर जो है हमें लैंडस्केप सीन्स में ही नज़र आता है ये जो एस शेप कर्व्स है. ये हमें स्टिल लाइफ में नज़र नहीं आ रहा बट हमें लैंडस्केप्स में बहुत देखने को मिलता है. इट इज़ ऑल्सो अ लीडिंग लाइन विच टेक्स योर आई थ्रू द आर्ट वर्क. ऑब्वियसली ये जो एस शेप स्ट्रक्चर है ये भी एक लीडिंग लाइन का ही रोल प्ले करता है. जैसे आपने प्रीवियसली पढ़ा, आपने प्रीवियसली सब पढ़ी है लाइंस, डायगोनल लाइंस, लीडिंग लाइंस. सो एस शेप स्ट्रक्चर भी आपको हेल्प करता है आपकी आई को टू मूव टूवर्ड्स द फोकल पॉइंट और टूवर्ड्स द एरिया ऑफ इंटरेस्ट. अ की स्ट्रेंथ of the S curve is that it can easily be used to imply or emphasize a sense of depth. और सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है जो ये हेल्प करता है आपको एस शेप स्ट्रक्चर, वो ये है कि आपको डेप्थ की तरफ लेके जाता है. एक आपकी इमेज में डेप्थ की फीलिंग आती है. वो आपको, जैसे हम पर्सपेक्टिव की बात करते हैं कि अगर आपके इमेज में पर्सपेक्टिव है तो उसमें उतनी ही डेप्थ है. अगर आपने अच्छा पर्सपेक्टिव कैप्चर कर लिया है तो इट मीन्स दैट यू हैव अचीव्ड डेप्थ इन योर पेंटिंग, इन योर सीन. सो एस शेप स्ट्रक्चर भी आपको हेल्प करता है पेंटिंग में डेप्थ क्रिएट करने में. अब देखिए जैसे ये रोड है, इसकी सारी लाइंस जो हैं आगे जाके एक पॉइंट पे नैरो डाउन हो रही हैं. ठीक है, पर्सपेक्टिव में भी यही होता है कि आपकी सारी लाइंस जो हैं वो एक पॉइंट पे जाके जो हैं वो वैनिश हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, डिसअपीयर हो जाती हैं. इसी तरह से ये जो ट्रैक बना हुआ है एस शेप, ये भी आगे जाके नैरो डाउन हो रहा है और वैनिश हो रहा है. तो बेसिकली ये भी एक तरह से पर्सपेक्टिव का ही काम कर रहा है और डेप्थ क्रिएट कर रहा है आपके सीन के अंदर. अदर कॉम्पोजिशनल एंड डिज़ाइन एलिमेंट्स. There are other compositional and design elements apart from your composition which helps you to make your painting or drawing more stronger. इसमें आ जाता है tone and contrast, pattern and rhythm, color and texture should be put in your scene together. All objects in a still life, if have relationship with each other, it will help to achieve a good composition. We have already talked about it in the previous slide that all objects in your composition should have a strong relationship with each other.
Only that's how you can achieve the harmony. Otherwise, your composition or your image will look uh, disturbed or unbalanced. Central composition. This is the example of a central composition. You can also see it as a large center composition. A large object or the main subject matter is displayed in the center of the composition. A bouquet of flowers by Rachel Roshish. So, uh, इट कुड बी एनी फिगर. यहाँ पे कोई फिगर भी हो सकता था, यहाँ पे कोई लैंडस्केप भी हो सकता था. बेसिकली आपको बताने का पर्पस ये है कि जो सेंट्रल कॉम्पोजिशन है वो ज़्यादा जूम इन होती है, वो ज़्यादा फोकस्ड होती है. उसमें डिटेल ज़्यादा ऑब्वियस हो रही होती हैं. और जो आपका सेंट्रल ऑब्जेक्ट होता है, जो आपका सब्जेक्ट मैटर होता है, जो आपका मेन एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है, वो आपका काफ़ी जूम इन किया हुआ होता है. जैसे आप देख सकते हैं इस कॉम्पोजिशन में जो मेन पिंक फ्लावर है वो ज़्यादा एम्फोसाइज कर रहा है, वो ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, बिकॉज इट इज़ मोर बिगर इन साइज एंड ऑल्सो इट हैज़ बीन पेंटेड इन मोर डिटेल कलर. और उसका कलर भी अगर आप देखें तो एज कम्पेयर टू द अदर फ्लावर्स वो काफ़ी हाईलाइट कर रहा है, पॉप आउट कर रहा है. गोल्डन ट्राइंगल. In the Renaissance, this geometric form was very popular and used in virgin and child paintings. So, रेनेसांस आर्ट मूवमेंट में आर्टिस्ट ने बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया है, इस कॉम्पोजिशन को. चाहे आप रफेल की बात करें, चाहे आप लेनार्डो की बात करें, चाहे आप माइकल एंजलो की बात करें, ऑल दीज पेंटर्स हैव यूटिलाइज दिस ज्योमेट्रिकल फॉर्म. और वी कैन ऑल्सो कॉल इट अ ट्राइंगल, क्योंकि ये एक तरह से ट्राइंगुलर कॉम्पोजिशन आपकी बन रही है. इफ़ यू सी दिस फॉर्म ऑफ कॉम्पोजिशन इज़ अ बेसिक ट्राइंगल इन द पेंटिंग. You could say that you are dealing with a triangular composition. That's why इसको golden triangle कहा गया है. So आपको जो वर्जिन मैरी और जो चाइल्ड के साथ पेंटिंग्स नज़र आती हैं, या मडोना की हमें जो पेंटिंग्स नज़र आती हैं, वहाँ पे हमें ये गोल्डन ट्राइंगल की कॉम्पोजिशन काफ़ी ऑब्वियस होती है. These are the other examples of the still lives. As you can see, यहाँ पे हमें L shape composition एक नज़र आ रही है. And this is another example of a still life, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका वर्टिकल मोस्ट हाइटेड जो जग है उसको 1/3 एरिया में कंपोज किया गया है. और उसके अलावा जो बाकी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं वो देखें, उनकी क्वांटिटी भी ज़्यादा हो गई है, लेकिन उनकी हाइट इतनी नहीं है. दैट्स वाई उनकी क्वांटिटी ज़्यादा कर दी गई है. एंड दे हैव बीन प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट एरिया, ऑन द 2/3 एरिया ऑफ द इमेज. दे आर कवरिंग 2/3 area of your image. So that's it. I hope that today's lecture will help you to understand composition and its various rules more clearly, and it will help you further in your paintings. Thank you.